ॐ श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar. Namaskar. Today we read chapter 75 of the Ayodhya Kandam, which has 65 verses. Swearing that what had already come to pass in the shape of exile of Sri Rama, Sita and Lakshmana, and the resultant death of the king emperor was not to his liking, Bharata moves with Shatrughna to the apartments of his stepmother Kausalya, who speaks unkindly to him, taunting him with the remark that his mother Kaikeyi had rendered good offices to him by securing for him the kingdom of Koshala, sought after by him. Bharata, however, politely denies on a number of oaths all complicity in the mechanizations of his vile mother. Thereby, coming to know of his heart, the guileless Kausalya places Bharata on her lap and weeps bitterly. आज हम पंचसप्तम सर्ग का पठन पाठन श्रवण करेंगे। इसमें 65 श्लोक हैं। कौशल्या के सामने भरत का शपथ खाना। दीर्घकालात् समुत्थाय संज्ञां लब्ध्वा स वीर्यवान् नेत्राभ्याम् अश्रुपूर्णाभ्याम् दीनाम् उद्वीक्ष्य मातरम्। बहुत देर के बाद होश में आने पर जब पराक्रमी भरत उठे तब आंसू भरे नेत्रों से दीन बनी बैठी हुई माता की ओर देखकर मंत्रियों के बीच में उसकी निंदा करते हुए बोले, सो अमात्य मध्ये भरतो जननीम् अभ्यकुत्सयत् राज्यं न कामये जातु मंत्रये नापि मातरम्। मंत्री वरों, मैं राज्य नहीं चाहता और न मैंने कभी माता से इसके लिए बातचीत ही की है। महाराज ने जिस अभिषेक का निश्चय किया था उसका भी मुझे पता नहीं था, क्योंकि उस समय मैं शत्रुघ्न के साथ दूर देश में था। Regaining his consciousness after a long time, the said Bharata, who was full of valor, got up and casting a glance at his mother, who looked miserable at the unexpected turn of events, with her eyes full of tears, reproached her right and left in the midst of the ministers, who had evidently collected there on coming to know of Bharata's arrival, and said, I never coveted the throne, nor did I ever hold any consultation with my mother. अभिषेकं न जानामि यो भूत् राज्ञा समीक्षितः विप्रकृष्टे ह्यहं देशे शत्रुघ्न सहितो अभवम्। Nor did I know anything about the installation of Sri Rama as Prince Regent, which was contemplated by the king, for I happened to be at that time in a distant land with Shatrughna, my brother. वनवासं न जानामि रामस्य अहं महात्मनः विवासनं च सौमित्रेः सीतायाश्च यथा भवत्। महात्मा श्री राम के वनवास और सीता तथा लक्ष्मण के निर्वासन का भी मुझे ज्ञान नहीं है कि वह कब और कैसे हुआ। Nor again was I aware of the residence in the forest of the high-souled Sri Rama, nor how the exile of Lakshmana, son of Sumitra, and Sita came about. तथैव क्रोशतस्तस्य भरतस्य महात्मनः कौसल्या शब्दमाज्ञाय सुमित्रां चेदम् अब्रवीत्। महात्मा भरत जब इस प्रकार अपनी माता को कोस रहे थे, उस समय उनकी आवाज को पहचान कर कौसल्या ने सुमित्रा से इस प्रकार कहा। Recognizing the voice of celebrated Bharata of noble mind, who was lamenting as aforesaid, Kausalya spoke to Sumitra as follows. आगतः क्रूरकार्यायाः कैकेय्या भरतः सुतः तमहं दृष्टुमिच्छामि भरतं दीर्घदर्शिनम्। क्रूर कर्म करने वाली कैकेयी के पुत्र भरत आ गए हैं। वे बड़े दूरदर्शी हैं, अतः मैं उन्हें देखना चाहती हूँ। I think Bharata, the son of Kaikeyi of cruel deeds, has returned from his maternal grandfathers. I long to see the aforesaid Bharata who takes a long-range view of things.
एवमुक्त्वा सुमित्रां तां विवर्णवदना कृशा प्रतस्ते भरतो यत्र वेपमाना विचेतना। सुमित्रा से ऐसा कहकर उदास मुख वाली दुर्बल और अचेत सी हुई कौशल्या जहां भरत थे उस स्थान पर जाने के लिए कांपती हुई चली। Speaking as aforesaid to Sumitra, the pale-faced and emaciated lady who looked absent-minded advanced trembling to the place where Bharata was. सतु राजात्मजश्चापि शत्रुघ्नसखितः तथा प्रतस्ते भरतो येन कौसल्याया निवेशनम्। उसी समय उधर से राजकुमार भरत भी शत्रुघ्न को साथ लिए उसी मार्ग से चले आ रहे थे जिससे कौशल्या के भवन में आना जाना होता था। Nay, accompanied by Shatrughna, the said Prince Bharata too on the other side proceeded that very moment along the route by which Kausalya's apartments could be reached. ततः शत्रुघ्न भरतौ कौसल्यां प्रेक्ष्य दुःखितौ पर्यश्वजेतां दुःखार्तां पतितां नष्टचेतनाम्। Perceiving Kaushalya, who was stricken with sorrow and had fallen unconscious on the way, the two afflicted brothers, Shatrughna and Bharata, hugged her. रुदन्तौ रुदति दुःखात् समेत्यार्या मनस्विनी भरतं प्रत्युवाच इदं कौसल्या वृषदुःखिता। Embracing in return the two brothers who were weeping through agony, the noble and high-minded Kausalya, who was so distressed, addressed Bharata as follows. तदंतर शत्रुघ्न और भरत से दूर ही देखा कि माता कौशल्या दुख से व्याकुल और अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी है। यह देखकर उन्हें बड़ा दुख हुआ और वे दौड़कर उनकी गोद से लग गए तथा फूट फूट कर रोने लगे। आर्य मनस्विनी कौशल्या भी दुख से रो पड़ी और उन्हें छाती से लगाकर अत्यंत दुखित हो भरत से इस प्रकार बोली, इदं ते राज्यकामस्य राज्यं प्राप्तम् अकंटकं संप्राप्तं बत कैकेय्या शीघ्रं क्रूरेण कर्मणा। बेटा तुम राज चाहते थे ना, सो ये निष्कंटक राज्य तुम्हें प्राप्त हो गया, किंतु खेद यही है कि कैकेयी ने जल्दी के कारण बड़े क्रूर कर्म के द्वारा इसे पाया है। Enjoying this kingdom devoid of enemies obtained by you who coveted it, alas, it has been promptly secured for you by Kaikeyi through a cruel deed in the shape of banishing Rama, Sita and Lakshmana. प्रस्ताप्य चीरवसनं पुत्रं मे वनवासिनं कैकेयी कं गुणं तत्र पश्यति क्रूरदर्शिनी। क्रूरतापूर्ण दृष्टि रखने वाली कैकेयी ना जाने इसमें कौन सा लाभ देखती थी कि उसने मेरे बेटे को चीर वस्त्र पहनाकर वन में भेज दिया और उसे वनवासी बना दिया। What good did the cruel-eyed Kaikeyi expect by sending into exile as she did my son Rama as an ascetic clad in the bark of trees? क्षिप्रं मामपि कैकेयी प्रस्तापयितुम् अर्हति हिरण्यनाभो यत्रास्ते सुतो मे सुमहा यशाः। अब कैकेयी को चाहिए कि मुझे भी शीघ्र ही उसी स्थान भेज दे जहां इस समय स्वर्णमयी नाभि से सुशोभित मेरे महायशस्वी पुत्र श्री राम है। Kaikeyi ought to send away soon me as well to that place where my exceptionally illustrious son, with a golden navel, a distinguishing mark of Lord Vishnu, is sojourning. अथवा स्वयं एव अहं सुमित्रानुचरा सुखम् अग्निहोत्रं पुरस्कृत्य प्रस्थास्ये यत्र राघवः। अथवा सुमित्रा को साथ लेकर और अग्निहोत्र को आगे करके मैं स्वयं ही सुख पूर्वक उस स्थान को प्रस्थान करूंगी जहां श्री राम निवास करते हैं। Or placing the sacrificial fire carried by a Brahmana ahead and followed by Sumitra, I shall myself depart happily along the route by which Rama has proceeded to the forest. In a note, the translator says, the king's seniormost wife alone is entitled to preserve and worship the sacred fire in the absence of or on the death of her husband. कामं वा स्वयंवेव अद्य तत्र मां नेतुमर्हसि यत्र असौ पुरुषव्याघ्रः
तप्यते मे च्युतः तपः। अथवा तुम स्वयं ही अपनी इच्छा के अनुसार अब मुझे वहीं पहुंचा दो जहां मेरे पुत्र पुरुष सिंह श्री राम तप करते हैं। Or you ought personally to take me now freely to the place where my aforesaid son, a veritable tiger among men, is practicing austerities. इदं हि तव विस्तीर्ण धन धान्य समाचितं हस्ति अश्व रथ संपूर्णं राज्यं निर्यातितं तया। ये धन धान्य से संपन्न तथा हाथी घोड़े एवं रथों से भरा पूरा विस्तृत राज्य केकई ने श्री राम से छीनकर तुम्हें दिलाया है। This extensive kingdom, overflowing with riches and food grains, and fully equipped with elephants, horses, and chariots, has actually been conferred on you by your mother. इत्यादि बहुभिर्वाक्यैः क्रूरैः संवर्त्सितो अनघः विव्यते भरतो अतीव व्रणे तुद्येव सूचिना। इस तरह की बहुत सी कठोर बातें कहकर जब कौशल्या ने निरपराध भरत की भर्त्सना की तब उनको बड़ी पीड़ा हुई, मानो किसी ने घाव में सुई चुभा दी हो। Bitterly reproached in many such cruel words, the sinless Bharata felt extremely pained, as he would when pricked with a needle inside a wound. पपात चरणौ तस्याः तदा सभ्रांत चेतनः विलप्य बहुधा संज्ञो लब्ध संज्ञ तदा भवत्। वे कौशल्या के चरणों में गिर पड़े। उस समय उनके चित्त में बड़ी घबराहट थी। वे बारंबार विलाप करके अचेत हो गए। थोड़ी देर बाद उन्हें फिर चेत हुआ। Having lost his consciousness, his mind being utterly confused to hear the taunting words of Kaushalya, Bharata presently regained his senses and wailing in many ways then fell at her feet. एवं विलपमानं तां प्राञ्जलिर्भरतः तदा कौसल्या प्रत्युवाच इदं शोकैः बहुभिः आवृतम्। तब भरत अनेक प्रकार के शोक से घिरी हुई और पूर्वोक्त रूप से विलाप करती हुई माता कौशल्या से हाथ जोड़कर इस प्रकार बोले। To Kausalya, overwhelmed with grief of many kinds and lamenting as aforesaid, Bharata then replied with folded hands as follows. आर्ये कस्मात् अजानन्तं गर्हसे माम् अकल्मषं विपुलां च मम प्रीतिं स्थितां जानासि राघवे। अरे यहाँ जो कुछ हुआ इसकी मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं थी। मैं सर्वथा निरपराध हूँ, तो भी आप क्यों मुझे दोष दे रही हैं? आप तो जानती हैं कि श्री रघुनाथ जी में मेरा कितना प्रगाढ़ प्रेम है। Wherefore do you reproach me, O noble lady, guileless as I am, and did not know anything about Sri Rama's exile before I returned to Ayodhya? Nay, you know my great love born towards Sri Rama, a scion of the Raghu. कृत शास्त्रानुगा बुद्धिर्मा भूत तस्य कदाचन सत्यसन्धः सतां श्रेष्ठो यस्य आर्यो अनुमते गतः। जिसकी अनुमति से सत्पुरुषों में श्रेष्ठ सत्य प्रतिज्ञ आर्य श्री राम जी वन में गए हों, उस पापी की बुद्धि कभी गुरु से सीखे हुए शस्त्र में बताए हुए गए मार्ग का अनुसरण करने वाली ना हो। Let his judgment never follow the teachings of the scriptures as taught by his preceptor, with whose concurrence my elder brother, who is true to his promise and is the foremost of the virtuous, has gone into exile. प्रैष्यं पापीयसां यातु सूर्यं च प्रति मेहतु हन्तु पादेन गाहा सुप्ता यस्य आर्यो अनुमते गतः। जिसकी सलाह से बड़े भाई श्री राम को वन में जाना पड़ा हो, वह अत्यंत पापियों हीन जातियों का सेवक हो, सूर्य की ओर मुंह करके मल मूत्र त्याग करे और सोई हुई गौओं को लातों से मारे, अर्थात वह इन पाप कर्मों के दुष्परिणाम का भागी हो। Let him whose concurrence my elder brother has gone into exile suffer the lot of a servant of men belonging to the lowest stratum of society, incur the sin of answering the calls of nature facing the sun, and reap the consequences of kicking cows lying asleep.
कारयित्वा महत्कर्म भर्ता भृत्यम् अनर्थकम् अर्धमो यो अस्य सो अस्यास्तु यस्यार्यो अनुमते गतः। जिस सम्मति से भैया श्री राम ने वन को प्रस्थान किया, उसको वही पाप लगे जो सेवक से भारी काम कराकर उसे समुचित वेतन ना देने वाले स्वामी को लगता है। Let him with whose concurrence my elder brother has gone into exile incur the sin that attaches to a master who robs his servant of his resources after getting him accomplished a great deed for him. परिपालयमानस्य राज्ञो भूतानि पुत्रवत् ततस्तु द्रुह्यतां पापं यस् आर्यो अनुमते गतः। जिसके कहने से आर्य श्री राम को वन में भेजा गया हो, उसको वही पाप लगे जो समस्त प्राणियों का पुत्र की भांति पालन करने वाले राजा से द्रोह करने वाले लोगों को लगता है। Let the sin attached to those bearing enmity to a king, protecting his subjects as his own offspring, be incurred by him with whose concurrence my elder brother has gone into exile. बलिशक् बाघ मुद्रुत्य नृपस्य अरक्षितुः प्रजाः अधर्मो यो अस्य सो अस्यास्तु यस् आर्यो अनुमते गतः। जिसकी अनुमति से आर्य श्री राम वन में गए हो, वह उसी अधर्म का भागी हो जो प्रजा से उसकी आय का छठा भाग लेकर भी प्रजा वर्ग की रक्षा ना करने वाले राजा को प्राप्त होता है। Let the sin that attaches to a king who fails to protect the people, even after collecting the land revenue in the form of 1/6 of the produce, be incurred by him, with whose concurrence my elder brother has gone into exile. संश्रुत्य च तपस्विभ्यः रात्रे वै यज्ञदक्षिणां तां चापलपथां पापं यस्यार्यो अनुमते गतः। जिसकी सलाह से भैया श्री राम को वन में जाना पड़ा हो, उसे वही पाप लगे जो यज्ञ में कष्ट सहने वाले ऋतवजों को दक्षिणा देने की प्रतिज्ञा करके पीछे इनकार कर देने वाले लोगों को लगता है। Let the sin attaching to those withholding payment of the sacrificial fee, even after promising it to the priests, practicing austerities and officiating at a sacrifice, be incurred by him, with whose concurrence my elder brother has gone into exile. हस्ति अश्वरथ संवादे युद्धे शस्त्र समाकुले मास्म कार्षीत् सतां धर्मं यस्यार्यो अनुमते गतः। हाथी घोड़े और रथों से भरे एवं अस्त्र शस्त्रों की वर्षा से व्याप्त संग्राम में सत्पुरुषों के धर्म का पालन न करने वाले योद्धाओं को जो पाप लगता है, वही उस मनुष्य को भी प्राप्त हो जिसकी सम्मति से आर्य श्री राम को वन में भेजा गया हो। Let the sin attaching to the man who fails to observe the code of warfare, followed by the virtuous on a field of battle, crowded with elephants, horses, and chariots, and thick with weapons of all kinds, be incurred by him, with whose concurrence my elder brother has gone into exile. उपदिष्टं सुसूक्ष्मार्थं शास्त्रं यत्नेन धीमता स नाशयतु दुष्टात्मा यस्यार्योनुमते गतः। जिसकी सलाह से आर्य श्री राम को वन में प्रस्थान करना पड़ा, वह दुष्ट आत्मा बुद्धिमान गुरु के द्वारा यत्न पूर्वक प्राप्त हुआ शस्त्र के सूक्ष्म विषय का उपदेश भुला दे। Let that wicked soul with whose concurrence my elder brother has gone into exile forget the sacred lore expounding the most esoteric truths taught with great pains by an enlightened preceptor. माचतं व्यूढ बाह्वांसं चंद्र भास्कर तेजसं द्राक्षीत राज्यस्थं आसीनं यस्यार्योनुमते गतः। जिसकी सलाह से बड़े भैया श्री राम को वन में भेजा गया हो, वह चंद्रमा और सूर्य के समान तेजस्वी तथा विशाल भुजाओं और कंधों से सुशोभित श्री रामचंद्र जी को राज्य सिंहासन पर विराजमान ना देख सके, वह राजा श्री राम के दर्शन से वंचित रह जाए। Let him with whose concurrence my elder brother has departed for the forest
not live to see Sri Rama of muscular arms and shoulders and possessing the splendor of the moon and the sun installed on the throne. Payasam krisaram chagam vrita so ashnatu nirgrunaha gurus chak api ajanatu yes aryo anumate gataha. जिसकी सलाह से आर्य श्री रामचंद्र जी वन में गए हों, वह निर्दय मनुष्य खीर, खिचड़ी और बकरी के दूध को देवताओं, पुत्रों एवं भगवान को निवेदन किए बिना व्यर्थ करके खाए. Let that merciless fellow with whose concurrence my elder brother has departed for the woods incur the sin of partaking of milk boiled with rice and sugar, seasoned rice boiled with sesame seeds and moong, a kind of kidney bean, and goat milk in vain, without offering them in the first instance to the Almighty Lord, gods and manes, etc., and of showing disrespect to his elders by failing to rise on the arrival and on their arrival and greet them. Gascha sprishatu padena gurun parivadeta cha mitre druhyeta so atyartam yasyaryo anumate gataha. जिसकी सम्मति से श्री रामचंद्र जी को वन में जाना पड़ा हो, वह पापी मनुष्य गौओं के शरीर का पैरों से स्पर्श गुरुजनों की निंदा तथा मित्र के प्रति अत्यंत द्रोह करे. Let him with whose concurrence my elder brother has departed for the forest incur the sin of touching the body of cows with his feet, reviling his elders and bearing deep-rooted malice to a friend. Vishwasat katitam kinchit parivadam mitaha kvachit vivrunotu sa dushtatma yasyaryo anumate gataha. जिसके कहने से बड़े भैया श्री राम वन में गए हों, वह दुष्ट आत्मा गुप्त रखने के विश्वास पर एकांत में कहे हुए किसी के दोष को दूसरों पर प्रकट कर दे, अर्थात उसे विश्वासघात करने का पाप लगे. Let that evil-minded fellow with whose concurrence my elder brother has departed to the forest incur the sin of revealing to someone else a fault of another confessed in private out of reliance that he will not divulge the secret before anyone. Akarta cha akritagnyascha tyaktatma nirapatrapaha loke bhavatu vidvishto yasyaryo anumate gataha. जिसकी अनुमति से आर्य श्री राम वन में गए हों, वह मनुष्य उपकार न करने वाला, कृतघ्न सत्पुरुषों द्वारा परित्यक्त, निर्लज और जगत में सबके द्वेष का पात्र हो. Let the fellow with whose concurrence my elder brother has departed for the woods never be in a position to return a service. Nay, let him prove ungrateful and shameless. Let him be shunned by good men and hated by all. Putraihi dasaischa vrityaischa swagrihe parivaritaha sa eko mrishtam ashnatu yasyaryo anumate gataha. जिसकी सलाह से आर्य श्री राम वन में गए हों, वह अपने घर में पुत्रों, दासों और भृत्यों से घिरा रहकर भी अकेले ही मिष्टान भोजन करने के पाप का भागी हो. Let the fellow with whose concurrence my elder brother has departed for the woods incur the sin of partaking of a savory dish alone at his own house, though surrounded by a number of sons, servants, and dependents. Aprapya sadrushan dharan anapatyah pramiyatam anavapya kriyam dharmyam yasyaryo anumate gataha. जिसकी अनुमति से आर्य श्री राम का वन गमन हुआ हो, वह अपने अनुरूप पत्नी को ना पाकर अग्निहोत्र आदि धार्मिक कर्मों का अनुष्ठान किए बिना संतानहीन अवस्था में ही मर जाए. Let the fellow with whose concurrence my elder brother has departed for the woods die issueless, failing to secure a wife becoming of him, in point of pedigree, disposition, and so on, and in this way not enjoying the privilege of performing sacred duties like Agnihotra, etc., which can only be performed by a married couple. Ma matmanaha
सन्ततिं द्राक्षीत् स्वेषु दारेषु दुःखितः आयुः समग्रम् अप्राप्य यस्यार्यो अनुमते गतः। जिसकी सम्मति से मेरे बड़े भाई श्री राम वन में गए हों, वह सदा दुखी रहकर अपनी धर्म पत्नी से होने वाली संतान का मुंह ना देखे तथा संपूर्ण आयु का उपभोग किए बिना ही मर जाए। Let the fellow with whose concurrence my elder brother has departed for the woods not behold the face of a male child through their wedded wife and die full of agony without attaining the full age of 100 years. राजस्त्री बालवृद्धानां वधे यत् पापमुच्यते भृत्यत्यागे च यत् पापं तत् पापं प्रतिपद्यताम्। राजा स्त्री बालक और वृद्धों का वध करने तथा भृत्यों को त्याग देने में जो पाप होता है वही पाप उसे भी लगे। Let him incur the same sin which is declared as attaching to the act of killing a ruler, a woman, infant, or an aged man, and forsaking a dependent. लाक्षया मधुमांसेन लोहेन च विषेण च सदैव बिभ्रूयाद् भृत्यान् यस्यार्यो अनुमते गतः। जिसकी सम्मति से श्री राम वन गमन हुआ हो, वह सदैव लाह, मधु, मांस, लोहा और विष आदि निषेध वस्तुओं को बेचकर कमाए हुए धन से अपने भरण पोषण के योग्य कुटुंबी जनों का पालन करे। Let him with whose concurrence my elder brother has departed for the woods always support his dependents through sale of lacquer, honey and flesh, iron and poison, which is prohibited in the Shastras. संग्रामे समुपोढे च शत्रुपक्ष भयंकरे पलायमानो वध्येत यत्याद्यो अनुमते गतः। जिसकी राय से श्री राम वन में जाने को विवश हुए हो, वह शत्रु पक्ष को भय देने वाले युद्ध के प्राप्त होने पर उसमें पीठ दिखाकर भागता हुआ मारा जाए। Let him with whose concurrence my elder brother has departed for the woods be killed while fleeing at a time when a battle inspiring terror into the adversaries has commenced. कपालपाणिः पृथिवीम् अटथां क्षीरसंवृतः भिक्षमाणो यतोन्मत्तो यस्यार्यो अनुमते गतः। जिसकी सम्मति से आर्य श्री राम वन में गए हो, वह फटे पुराने मैले कुचैले वस्त्रों से अपने शरीर को ढककर हाथ में खप्पर ले भीख मांगता हुआ उन्मत्त की भांति पृथ्वी पर घूमता फिरे। Let him with whose concurrence my elder brother has departed for the woods roam about like a madman, clad in tatters and begging alms, bowl in hand. मध्य प्रसक्तो भवतु स्त्रीषु अक्षेषु च नित्यशः काम क्रोधाभिभूतश्च यस्यार्यो अनुमते गतः। जिसकी सलाह से श्री रामचंद्र जी को वन में जाना पड़ा हो, वह काम क्रोध के वशीभूत होकर सदा ही मदपान, स्त्री गमन और द्रुत क्रीड़ा में आसक्त रहे। Let him with whose concurrence my elder brother has departed for the woods be given over from day to wine as well as to women and dice and overpowered by lust and anger. मास्य धर्मे मनो भूयात् अधर्मं स निषेवताम् अपात्रवर्षी भवतु यस्यार्यो अनुमते गतः। जिसकी अनुमति से आर्य श्री राम वन में गए हो, उसका मन कभी धर्म में ना लगे और वह अधर्म का ही सेवन करे और अपात्र को धन दान करे। Let the man with whose concurrence my elder brother has departed for the woods indulge in unrighteous acts and shower his wealth on the undeserving, and let his mind never take delight in piety. संचिन्त्यस्य वित्तानि विविधानि सहस्रशः दस्युभिर्विप्रलुप्यन्ताम् यस्यार्यो अनुमते गतः। जिसकी सलाह से आर्य श्री राम वन गमन हुआ हो, उसके द्वारा सहस्त्रों को संख्या में संचित किए गए नाना प्रकार के धन वैभव को लुटेरे लूट ले जाए। Let the possessions of every description accumulated in thousands of the fellow with whose concurrence my elder brother has departed for the woods be looted by robbers. उभे सन्ध्ये शयानस्य यत् पापं परिकल्प्यते तच्च पापं भवेत् तस्य यस्यार्यो अनुमते गतः।
Let that very sin which attaches to a man who sleeps during both the twilights be incurred by him with whose concurrence my elder brother has departed for the woods. यदग्निदायके पापं यत् पापं गुरुतल्पगे मित्रद्रोहे च यत् पापं तत् पापं प्रतिपद्यताम्. Let him incur that very sin which attaches to the man who practices arson, to him who violates the bed of his teacher, and the fellow who plays a friend foul. जिसके कहने से भैया श्री राम को वन में भेजा गया हो, उसे वही पाप लगे जो दोनों संध्याओं के समय सोए हुए पुरुष को प्राप्त होता है. आग लगाने वाले मनुष्य को जो पाप लगता है, गुरु पत्नी गामी को जिस पाप की प्राप्ति होती है, तथा मित्र द्रोह करने से जो पाप प्राप्त होता है, वही पाप उसे भी लगे. देवतानां पितॄणां च माता पित्रोस्तथैव च मास्मकार्षीत् शुश्रूषां यस्यार्योनुमते गतः. जिसकी सम्मति से आर्य श्री राम को वन में जाना पड़ा हो, वह देवताओं, पितरों और माता पिता की सेवा कभी न करे, अर्थात उसकी सेवा के पुण्य से वंचित रह जाए. Let the fellow with whose concurrence my elder brother has departed for the woods not have an opportunity to do service to the gods in the form of Agnihotra, etc., and to the mains in the form of periodical Shraddha, and likewise to his living parents. सतां लोकात् सतां कीर्त्याः सज्जुष्टात् कर्मणस्तथा भ्रश्यतु क्षिप्रम् अद्यैव यस्यार्यो अनुमते गतः. जिसकी अनुमति से विवश होकर भैया राम ने वन में पदार्पण किया है, वह पापी आज ही सत्पुरुषों के लोक से सत्पुरुषों की कीर्ति से सतत सत्पुरुषों द्वारा सेवित कर्म से शीघ्र भ्रष्ट हो जाए. Let the man with whose concurrence my elder brother has departed for the woods forfeit this very day, nay, at once his claim to the region inhabited by the virtuous after their death. Forfeit his claim to the reputation enjoyed by good men and fall from the course of conduct followed by the righteous. अपास्य मातृ शुश्रूषा अनर्थे सो अवतिष्ठताम् दीर्घबाहुर् महावक्षा यस्यार्योनुमते गतः. जिसकी सम्मति से बड़ी बड़ी बाहों और विशाल वक्ष वाले आर्य श्री राम को वन में जाना पड़ा है, वह माता की सेवा छोड़कर अनर्थ के पथ में स्थित रहे. Let the fellow with whose concurrence my elder brother, distinguished by long arms and a broad chest, has departed for the woods, be devoted to the evil path, giving up service to his mother. बहुभृत्यो दरिद्रश्च ज्वर रोग समन्वितः समायात् सततं क्लेशं यस्यार्योनुमते गतः. जिसकी सलाह से श्री राम का वन गमन हुआ हो, वह दरिद्र हो, उसके यहाँ भरण पोषण पाने के योग्य पुत्र आदि की संख्या बहुत अधिक हो, तथा वह ज्वर रोग से पीड़ित होकर सदा क्लेश भोगता रहे. Let him with whose concurrence my elder brother has departed for the woods be a pauper, though having many dependents to support. Let him be seized with ailments in the form of fever and suffer hardships continually. आशाम् आशां समानानां दीनानाम् ऊर्ध्वचक्षुषाम् अर्तिनां विततां कुर्यात् यस्यार्योनुमते गतः. जिसकी अनुमति पाकर आर्य श्री राम वन में गए हों, वह आशा लगाए ऊपर की ओर आंख उठाकर दाता के मुंह की ओर देखने वाले दीन याचकों की आशा की निष्फल हो कर दे. Let the man with whose concurrence my elder brother has departed for the woods falsify the hopes of destitute suppliants, uttering his praises and looking upwards in his face in expectancy. मायया रमतां नित्यं पुरुषः विष्णो अशुचिः राज्ञो वीतः त्वधर्मात्मा यस्यार्यो अनुमते गतः. जिसके कहने से भैया श्री राम वन को प्रस्थान किया हो, वह पाप आत्मा पुरुष चुगला अपवित्र तथा राजा से भयभीत रहकर सदा छल कपट में ही रचा पचा रहे.
Let him with whose concurrence my elder brother has departed for the woods ever delight in deception, remaining a backbiter and impure and afraid of the king all his life, his mind being given to unrighteousness. ऋतुस्नातां सतीं भार्यां ऋतुकालानुरोधिनीम् अतिवर्तेत दुष्टात्मा यस्यार्योनुमते गतः। जिसके परामर्श से आर्य का वन गमन हुआ हो, वह दुष्ट आत्मा ऋतु स्नान काल प्राप्त होने के कारण अपने पास आई हुई सती साध्वी ऋतु स्नाता पत्नी को ठुकरा दे और उसकी इच्छा ना पूर्ण करने के पाप का भागी हो। Let the evil-minded fellow with whose concurrence my elder brother has departed for the woods ignore his chaste wife who has attained purity after menstruation and is thus fit to conceive, and approaches him for union, the period being favorable for procreation. विप्रलुप्त प्रजातस्य दुष्कृतं ब्राह्मणस्य यत् तद् प्रतिपद्येत यस्यार्योनुमते गतः। जिसकी सलाह से मेरे बड़े भाई को वन में जाना पड़ा हो, उसको वही पाप लगे जो अन्न आदि का दान न करने अथवा स्त्री से द्वेष रखने के कारण नष्ट हुई संतान वाले ब्राह्मण को प्राप्त होता है। Let him with whose concurrence my elder brother has departed for the woods incur that very sin which attaches to a brahmana whose offsprings have perished for lack of nourishment. ब्राह्मणा योध्यतां पूजां विहन्तु कलुषेन्द्रियः बालवत्सां च गां दोग्धुः यस्यार्योनुमते गतः। जिसकी राय से आर्य ने वन में पदार्पण किया हो, वह मलिन इंद्रिय वाला पुरुष ब्राह्मण के लिए की जाती हुई पूजा में विघ्न डाल दे और छोटे बछड़े वाले 10 दिन के भीतर की ब्याही हुई गाय का दूध दुहे। Let that man of sinful mind with whose concurrence my elder brother has departed for the woods interrupt the worship going to be offered to a brahmana by another and milk a cow which calved less than 10 days ago. धर्मदारान् परित्यज्य परदारान् निषेवतां त्यक्तधर्मरतिर्मूढो यस्यार्योनुमते गतः। जिसने आर्य श्री राम के वन गमन की अनुमति दी हो, वह मूढ़ धर्मपत्नी को छोड़कर पर स्त्री का सेवन करे तथा धर्म विषय का अनुराग को त्याग दे। Let the fool with whose concurrence my elder brother has departed for the woods enjoy another's wife, forsaking his lawful wife and having given up his love for piety. पानीय दूषके पापं तथैव विषदायके यत् तदेकः स लभतां यस्यार्योनुमते गतः। पानी को गंदा करने वाले तथा दूसरों को जहर देने वाले मनुष्य को जो पाप लगता है, वह सारा पाप अकेला वही प्राप्त करे जिसकी अनुमति से विवश होकर आर्य श्री राम को वन में जाना पड़ा है। Let that fellow with whose concurrence my elder brother has departed for the woods incur all at once the sin that attaches to him who defiles the water of a well or tank, as well as that which attaches to one who administers poison. तुषार्तं सति पानीये विप्रलम्भेन योजयन् यत् पापं लभते तत् स्यात् यस्यार्योनुमते गतः। जिसकी सम्मति से आर्य का वन गमन हुआ हो, उसे वही पाप प्राप्त हो जो पानी होते हुए भी प्यासे को उससे वंचित कर देने वाले मनुष्य को लगता है। Let the sin which a man disappointing a person oppressed with thirst by recourse to deception in the form of giving a false report, denying the presence of water, even though there is water with him, attached to him with whose concurrence my elder brother has departed for the woods. भक्त्या विवदमानेषु मार्गमाश्रित्य पश्यतः तेन पापेन युज्येत यस्यार्योनुमते गतः। जिसकी अनुमति से आर्य श्री राम वन में गए हो, वह उस पाप का भागी हो जो परस्पर झगड़ते हुए मनुष्य से किसी एक के प्रति पक्षपात रखकर मार्ग में खड़ा हो उनका झगड़ा देखने वाले कलह प्रिय मनुष्य को प्राप्त होता है। Let him with whose concurrence my elder brother has departed for the woods
be held guilty of the same sin which attaches to a man standing on the road and witnessing a dispute with partiality for one of the disputing parties. एवम् आश्वासयन् एव दुःखार्तो अनुपपातः विहीनां पतिपुत्राभ्यां कौशल्यां पार्थिवात्मजः। इस प्रकार पति और पुत्र से बिछड़ी हुई कौशल्या को शपथ के द्वारा आश्वासन देते हुए राजकुमार भरत दुख से व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। Even while reassuring as aforesaid Kausalya, who was bereft both of her husband and her son, the prince Bharata, they say, fell to the ground stricken as he was with agony. तदा तं शपथैः कष्टैः शपमानम् अचेतनं भरतं शोकसंतप्तं कौसल्या वाक्यम् अब्रवीत्। समय दुष्कर शब्दों द्वारा अपनी सफाई देते हुए शोक संतप्त एवं अचेत भरत से कौशल्या इस प्रकार कहा। Thereupon Kausalya spoke as follows to Bharata, who was solemnly pleading his innocence by means of oaths that were hard to take and had become unconscious, sore stricken as he was with grief. मम दुःखमिदं पुत्र भूयः सम उपजायते शपथैः शपमानो हि प्राणान् ऋणसि मे। बेटा तुम अनेक शपथ खाकर जो मेरे प्राणों को पीड़ा दे रहे हो, इससे मेरा ये दुख और भी बढ़ता जा रहा है। The present agony of mine, my son, is aggravated all the more and much as you are choking my breath while solemnly pleading your innocence by means of these oaths. दिष्ट्या न चलितो धर्मात् आत्मा ते सह लक्षणः वत्स सत्यप्रतिज्ञो हि सतां लोकान् अवाप्स्यसि। वत्स सौभाग्य की बात है कि शुभ लक्षणों से संपन्न तुम्हारा चित्त धर्म से विचलित नहीं हुआ। तुम सत्य प्रतिज्ञ हो, इसलिए तुम्हें सत्पुरुषों के लोग प्राप्त होंगे। Luckily enough, your mind, endowed as it is with excellence, has not deviated from righteousness. Since you are true to your promise, you will attain the realms of the virtuous, my child. इत्युक्त्वा च अंगमानीय भरतं भ्रातृवत्सलं परिष्वज्य महाबाहुं रुरोध वृषदुःखिता। ऐसा कहकर कौशल्या ने भ्रातृ भक्त महाबाहु भरत को गोद में खींच लिया और अत्यंत दुखी हो उन्हें गले से लगाकर वह फूट फूट कर रोने लगी। Saying so and placing the mighty armed Bharat, who was so fond of his brother, on her lap and embracing him, Kausalya, who felt sore distress, wept aloud. एवं विलपमानस्य दुःखार्तस्य महात्मनः मोहाच्च शोकसंरम्भात् बभूव लुलितं मनः। महात्मा भरत भी दुख से आर्त होकर विलाप कर रहे थे। उसका मन मोह और शोक से वेग से व्याकुल हो गया था। The mind of the high-souled Bharata, who was wailing as aforesaid, stricken as he was with sorrow, got agitated through infatuation and excess of grief. लालप्यमानस्य विचेतनस्य प्रनष्ट बुद्धेः पतितस्य भूमौ मुहुर्मुहुः निश्वसतश्च दीर्घं सा तस्य शोकेन जगाम रात्रिः। पृथ्वी पर पड़े हुए भरत की बुद्धि विवेक शक्ति नष्ट हो गई थी। वह अचेत से होकर विलाप करते और बारंबार लंबी सांस खींचते थे। इस तरह शोक में ही उनकी वह रात बीत गई। While Bharata was lamenting thus and lay fallen unconscious on the ground, sighing again and again through grief, his power of judgment having been lost, the aforesaid night passed. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे पंचसप्ततितमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मलता रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 75वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 75 in the Ayodhya Kandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic.
Om Shri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tattulyam Rama Nama Varanane Om Apadamapahartaram Dataram Sarvasampadam Lokabhiramam Shri Ramam Bhuyo Bhuyo Namamyaham. Dhanyavad. धन्यवाद।